Assalamu alaikum and welcome, dear students, to English class with Qaisar Bashir. Dear students and dear viewers, in today's video, we are going to study a beautiful poem which I have selected from class 8th English textbook Tulip series. But before we start and before I announce the title of the poem, I would like you to keep ready your English textbook, notebook, and pencil or pen so that you can write down all the necessary information and details that I'm going to be sharing with you through this video. Now, without wasting much of our time, let's get started. Dear students and dear viewers, after watching this video, you will be able to appreciate and value the beauty of nature. You'll be able to realize permanence of nature. You will understand how powerful and permanent nature is and how transient and how weak and short-lived human life is. And finally, you will be able to identify the theme of the poem, form of the poem, structure of the poem, and rhyme scheme of the poem. Dear students, the poem that we are going to study today is The Brook. This poem is written by Alfred Tennyson, and this poem is from class 8th English textbook Tulip series. Dear students and dear viewers, this is the poem The Brook, which we are going to study in today's video. Well, what is a brook? A brook is a small stream, or you can also call it a streamlet. Okay, you know, the right pronunciation of the brook is brook, not brook. Okay, brook. And in Urdu language, brook is called nadi or nala. इसको उर्दू में नदी या नाला कहते हैं. ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या है? ये नदी है. ओके, ब्रुक. और ये जो ब्रुक है, ये हमें अपनी कहानी सुनाती है. यानी ये कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करती है और इसको कहाँ जाना होता है, ये कहाँ जाना चाहती है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है. ओके, और इस पोएम में पोइट जो है हमारे अल्फ्रेड टेनिसन, जिसने इस पोएम को लिखा है, राइट, उसने ब्रुक को क्या किया है? पर्सोनिफाई किया है. क्या किया है? पर्सोनिफाई. यानी इसने ह्यूमन क्वालिटीज लाइक टॉकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग की जो क्वालिटीज़ है, या लॉफिंग, हंसना, लिखना, बात करना, ये क्वालिटीज़ किसको दी है? ये ब्रुक को दी है. यानी एक क्वालिटी इसमें दी है. कौन सी? बात करना है. क्योंकि इस पोएम में ब्रुक जो है वो हमें अपनी ज़बानी अपनी कहानी सुनाती है. ठीक है ना? तो यानी ये जो ब्रुक है ये हमें अपनी आप बीती सुनाती है. कहाँ से इसने जर्नी शुरू की है, कहाँ जाना चाहती है, और इसके थ्रू ये हमें ये रियलाइज करवाती है, ये एहसास दिलाती है कि ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस, ओके, ये क्या है? ये शॉर्ट लिव्ड है. शॉर्ट लिव्ड यानी ये कुछ देर के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, राइट. और यहाँ पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, एक मूवी का. आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है. तो इसी तरह की जो कहानी है एक ह्यूमन बीइंग की है, राइट. ये वीक है, ह्यूमन बीइंग क्या है? वीक है. लेकिन ये जो ब्रुक है ये नेचर को रिप्रेजेंट करती है. किसको रिप्रेजेंट करती है? नेचर को. और हमें ये बताती है कि नेचर जो है ये परमानेंट है. क्या है? परमानेंट. ये पावरफुल है, ये इटर्नल है. क्या है? इटर्नल यानी एवरलास्टिंग है. वाइल एज ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कुछ देर के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे और फिर चले जाते हैं, राइट. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो पोएम है ये अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है, जो कि विक्टोरियन एज के एक बहुत ही उम्दा पोइट
थे, राइट. ये विक्टोरियन एज में पोइट्री लिखते थे. ओके. और विक्टोरियन एज को विक्टोरियन एज क्यों क्या कहा जाता है? क्योंकि उन दिनों इंग्लैंड में कौन हुकूमत करती थी? क्वीन विक्टोरिया. क्वीन विक्टोरिया, right? I hope, dear students, you have got what actually this poem, the Brook, is all about. Dear students, can you name the brooks, nalas, or rivers that flow in your village, town, or district? Can you name the famous streams, nalas, or rivers that flow in your country? Write your responses in the comment section below. Dear students, let's read the poem, The Brook. I come from haunts of coot and heron. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. By 20 tops a little town and 500 bridges. Till last by Philip's palm I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. I chatter o'er stony ways in little shops and troubles. I bubble into eddying bays. I babble on the pebbles. With many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set with willow, weed, and mallow. I chatter, chatter as I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. I wind about and in and out, with here a blossom sailing, and here and there a lusty trout, and here and there a grayling, and here and there a foamy flake upon me as I travel, with many a silver water break about the golden gravel, and draw them all along and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. I steal by lawns and grassy plots. I slide by hazel covers. I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers. I slip, I slide, I gloom, I glance among my skimming swallows. I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. I murmur under moon and stars in brambly wildernesses. I linger by my shingly bars. I loiter round my cresses. And out again I curve and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. For men may come and men may go, but I go on forever. Can you guess the speaker of the poem, The Brook, written by Alfred Tennyson? Write your responses in the comment box below. Let's dive into the brook. Are you ready? Well, let's study the first stanza of the poem, The Brook. I come from haunts of coot and heron. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. The students, in the first line of the first stanza, I represents the brook. As I have already told you, the brook has been personified in the poem. Okay? एंड ब्रुक जो है हमें अपनी कहानी सुनाती है कि उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की है.
शी हैज़ कम फ्रॉम होंट्स. होंट्स यहाँ पे नाउन यूज़ किया गया है. इट्स अ प्लेस विच इज़ फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय सम स्पेसिफाइड पर्सन. और यहाँ पे इस प्लेस को फ्रीक्वेंटली कौन विजिट कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूसली कौन विजिट कर रहे हैं? बर्ड्स लाइक कूट एंड हर्न. कूट की पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो, इट्स अ बर्ड. एंड हर्न जो कि हेरॉन है, इसकी पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट. आई मेक अ सडन सैली. और फिर ब्रुक जो है वो कहती है कि आई मेक अ सडन सैली, सडन मूव. ओके, शी मेक्स अ सडन मूव टू go down the valley or to go toward the valley. And she says that she sparkles out, yani she shines when she goes down between the or among the fern. Fern is actually a plant which does not yield seed or flowers. Okay, तो इन ferns के बीच में ये shine करती हुई आगे बढ़ रही है वैली की तरफ. To bicker down a valley, right? तो bicker down means rush down. तो ये तेजी से आगे बढ़ रही है, right? A valley. What is a valley? Valley is actually a low area of land between hills or mountains, typically with a river or stream flowing through it. जैसे कि आपने सुना होगा कश्मीर वैली, बंगस वैली, बेताब वैली, etc. Right? In the second stanza, the book says, by 30 hills I hurry down, a slip between the ridges. By 20 tops, a little town, and 100 bridges. रिज चोटी को कहते हैं, थॉप विलेज को कहते हैं. तो यहाँ पे ब्रुक हमें कहती है कि वो 30 हिल्स को, रिज को, 20 विलेज को, एक छोटे से कस्बे को, और लगभग 50 ब्रिज को पार करते हुए आगे बढ़ रही है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई. ये आगे क्यों बढ़ रही है? इस क्वेश्चन का हमें जवाब आगे वाले स्टैंजाज में मिलेगा. इन द थर्ड स्टैंजा द बुक सेज, till last by Philip's farm I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. तीसरा जो स्टैंजा है इसमें ब्रुक कहती है कि 30 हिल्स को, रिज को, 20 विलेज को, एक छोटे से टाउन को, 50 ब्रिज को पार करने के बाद आखिरकार ये कहाँ पहुंचती है? फिलिप्स फार्म. फिलिप जो है द नेम ऑफ ए पर्सन who owns a farm. तो यहां पे मैंने फिलिप्स फार्म की ओरिजिनल पिक्चर जो है डाली है. तो आप यहां पे देखोगे जो ब्रुक है वो यहां से गुजर रही है, राइट. और इसका मेन मकसद क्या होता है? टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, यानी इसके आगे जो रिवर, दरिया बह रहा है उसके साथ इसको मिलना है, राइट. और वो जो रिवर है दैट्स ब्रिमिंग. ब्रिमिंग मीन्स फुल ऑफ वाटर, राइट, फुल ऑफ वाटर. और उसके बाद ये कहती है, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर. यानी लोग जो है वो इस दुनिया में आते जाएंगे, इस दुनिया से रुखसत होते जाएंगे, लेकिन मैं जो हूं, ब्रुक जो है वो कंटिन्यूअसली इसी तरह बहती रहेगी, राइट. तो यहां पे एक कंपैरिजन, वर्ड ऑफ कंट्रास्ट भी है, राइट. यहां पे एक वर्ड ऑफ कंट्रास्ट, यहां पे हमें यह समझ आता है कि ब्रुक अपने आप को इटर्नल कहती है, राइट. और जो मैन है, मैन यानी ह्यूमन बीइंग्स, वो क्या है? वो मॉर्टल है, यानी खत्म होने वाले, जो मरते हैं, ठीक है ना. और वो तो फैक्ट है, ठीक है. ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इस दुनिया में आते हैं, कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, फिर चले जाते हैं. तो ब्रुक जो है
ब्रुक अपने आप को इटर्नल कहती है। तो अपने आप को इटर्नल क्यों कहती है? बिकॉज ब्रुक इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ नेचर। ये नेचर को रिप्रेजेंट करती है, राइट? ये असल में नेचर है। इसलिए मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि ब्रुक जो है वो नेचर को रिप्रेजेंट करती है। नेचर पावरफुल होता है, ठीक है ना? नेचर पावरफुल है, इटर्नल है, एवरलास्टिंग है, परमानेंट है, और ह्यूमन बींग्स जो है वो मॉर्टल्स है, राइट? Dear students, in the fourth stanza, the brook says, I chatter stony ways in little sharps and troubles. I bubble into eddying bays. I babble on the pebbles. तो यहाँ पे जो ब्रुक है वो अपना सफ़र जारी करते हुए आगे जाती है, शोर मचाते मचाते। कभी राइट की तरफ वो टर्न करती है, कभी लेफ्ट की तरफ टर्न करती है, राइट? तो यहाँ पे अगर हम इस सिचुएशन को कंपेयर करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के साथ, तो यहाँ पे वो स्टेज जब एक ह्यूमन बीइंग यंग होता है, वो बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत सारी एक्शंस करता है, लेकिन उन एक्शंस का कोई मानी नहीं होता है। दे आर मीनिंगलेस। सिमिलरली दीज दिस नॉइज, चैटर, बबल एंड बैबल, जिस तरह इन वर्ड्स का कोई मानी नहीं है, इसी तरह ह्यूमन बींग्स की जो एक्शंस है उनका कोई मानी नहीं होता है। लेकिन फिर भी ह्यूमन बींग आगे बढ़ता रहता है, हाँ, अपनी जर्नी जो है वो जारी रखता है, जिस तरह ये ब्रुक जारी रखती है अपनी जर्नी। क्योंकि एक ब्रुक को उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग को उम्मीद होती है कहीं ना कहीं उसे रास्ता ज़रूर मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे पोइट ने एक बहुत ही इम्दा टेक्निक यूज़ की है जिसको हम ओनोमेटोपिया कहते हैं, राइट? इन पोइटिक डिवाइसेस को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन, ओनोमेटोपिया होता क्या है? इट्स एक्चुअली अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक द नॉइज इट डिस्क्राइब्स। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स, चैटर, बबल एंड बैबल, these words represent the music or the noise of the water, okay? और पोइट ने और एक टेक्निक यहाँ पे यूज की है, एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा होता है कि जब एक शायर एक वर्ड को इनिशियल पोजीशन में रिपीट करता है, तो यहाँ पे 3 बार एक ही वर्ड को इनिशियल पोजीशंस में रिपीट किया गया है, वो भी कंसेक्यूटिव लाइंस में। तो जब इस तरह एक पोइट एक वर्ड को रिपीट करता है कंसेक्यूटिव लाइंस में, तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। In the 5th stanza, the brook says, with many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set, with willow, weed and mallow. तो ब्रुक जो है वो अपनी जर्नी जारी रखते हुए आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के साथ साथ वो अपने बैंक्स को काटती है, राइट? फ्रेट होता है वेयर अवे, और अपने बैंक्स को काटते काटते वो खेतों के पास से गुजरती है, और उन फील्ड्स के पास से भी गुजरती है जो कि अनकल्टिवेटेड है, और उस एरिया से भी गुजरती है जो कि बहुत ही अनकनी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्ट्रेंज दिखता है, राइट? इसलिए फेरी फोरलैंड। और उस एरिया के पास से भी गुजरती है जहाँ पे विलो ट्रीज लोगों ने लगाए हुए होते हैं, और उस एरिया से भी गुजरती है जहाँ पे फूल खिल रहे होते हैं, राइट? और इस स्टैंजा में शायर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है जिसको हम एलिट्रेशन कहते हैं, राइट? अगर हम पोइटिक डिवाइसेस की बात करेंगे, राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे हो these sounds, fur and fur, get repeated once again, fur and fur get repeated once again, wa and wa get repeated at the initial position of these words, right? तो alliteration होता क्या है? It's actually the rhythmic repetition of consonant sounds, right? तो जब consonant sounds repeat होते हैं
in a poetic line at the very beginning of each word, तो उसको हम क्या कहते हैं? alliteration कहते हैं. The students in the sixth stanza, the brook says, I chatter, chatter as I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. तो इस स्टंजा में ब्रुक जो है वो शोर मचाते मचाते खुशी खुशी आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल नज़दीक है. और उसकी डेस्टिनेशन क्या है? रिवर, विच इज ओवरफ्लोइंग विद वाटर. और इस रिवर के साथ मिंगल होने के बाद वो इटर्नल हो जाएगी, यानी इमोर्टल बन जाएगी. अनलाइक ह्यूमंस. This is why she is happy, and this is why she repeats the phrase men may come and men may go. लोग आते जाएंगे लेकिन लोग जाते भी जाएंगे. But I go on for, लेकिन मैं जो हूँ मैं हमेशा इसी तरह बहती रहूँगी, मैं हमेशा इसी तरह चलती रहूँगी. तो यहाँ पे अपनी इटर्निटी की बात कर रही है और ह्यूमन बींग्स जो है उनको याद दिलाती है. क्या याद दिलाती है? कि वो वीक है, वो मॉर्टल्स है. The students in the seventh stanza, the brook says, I wind about and in and out with here a blossom sailing, and here and there a lusty trout, and here and there a grayling. ब्रुक अपनी जर्नी जारी रखते हुए बहुत सारी ब्यूटीज के साथ मिलती है, और किस तरह की एक्सपीरियंस एक ब्रुक को होती है वो इस स्टैंजा में वो बयां करती है. ब्रुक कहती है कि जब वो आगे बढ़ती है तो वो कभी राइट की तरफ घूमती है, कभी लेफ्ट की तरफ घूमती है, और उसकी बॉडी पे ब्लॉसम वो फूल होते हैं जिनके फल निकलते हैं, यानी फ्रूट्स निकलते हैं, वो भी उसकी बॉडी पे तैरते हैं, फ्लोट करते हैं. ठीक है. और आगे बढ़ते बढ़ते उसकी मुलाकात बहुत ही ब्यूटीफुल लस्टी हेल्दी ट्राउट के साथ होती है, और उसके बाद और एक फिश जिसका नाम है ग्रेलिंग, उसके साथ उसकी मुलाकात होती है. तो इस तरह ये अपनी एक्सपीरियंस जो है इस स्टैंजा में बयां करती है. The students in the eighth stanza, the brook says, and here and there a foamy flake upon me as I travel with many a silver break above the golden gravel. तो ब्रुक अपनी एक्सपीरियंस बयां करती है कि जो ही ये आगे बढ़ती है और स्टोन्स के साथ टकराती है, तो स्टोन्स के साथ टकराने के बाद उसकी बॉडी पे फ्रॉथ या बबल्स जो है वो अपीयर होते हैं, यानी बबल्स यहाँ पे जन्म लेते हैं. और जो ही ये वाटर स्टोन्स के साथ ग्रेवल के साथ टकराता है उसमें हिंड्रेंस आ जाती है, और आगे जाके क्या होता है वो प्लेन शक्ल अख्तियार करता है, जिसकी वजह से सन रेज उस पर रिफ्लेक्ट करती है. राइट. द स्टूडेंट्स इन द नाइन्थ स्टैंजा, द ब्रुक सेज, एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, बट आई गो ऑन फॉरएवर. तो यहाँ पे ब्रुक अपनी जर्नी जारी रखते हुए कहती है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, ग्रेवल को साथ लेके अपनी जर्नी को जारी रख रही हूँ. क्यों? क्योंकि उसे मिंगल होना है उस रिवर के साथ जो कि ओवरफ्लोइंग है, यानी फिल्ड है. ओके. ये तो उसकी डेस्टिनेशन है ये रिवर. तो ये किसी चीज की परवाह के बगैर आगे बढ़ती है, और साथ साथ हमें ये भी याद दिलाती है, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉरएवर. साथ साथ ह्यूमन बींग्स को ये भी याद दिलाती है कि आप मॉर्टल्स हो लेकिन मैं इमॉर्टल हूँ, मैं इटर्नल हूँ. The students in the 10th stanza, the brook says,
I steal by lawns and grassy plots. I slide by hazel covers. I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers. ब्रुक अपनी जर्नी जारी रखते हुए कहती है कि वो लॉन्स के पास से गुजरती है, ग्रासी प्लॉट्स के पास से गुजरती है, वो हैज़ल कवर्स के पास से गुजरती है, वो फॉरगेट मी नॉट एक तरह का एक फूल है, एक किस्म का एक फूल है, उनके पास से गुजरती है। और ये जो फूल है ये किन के लिए ब्लॉसम करते हैं, किन के लिए खिलते हैं? हैप्पी लवर्स के लिए। The students in the 11th stanza of the poem, the brook says, I slip, I slide, I gloom, I glance among my skimming swallows. I make the netted sunbeam dance against the sandy shallows. तो इस स्टंजा में ब्रुक अपनी एक्सपीरियंस को बयां करती है कि वो किस तरह स्किमिंग स्वेलोज जो कि उसकी सरफेस को सॉफ्टली टच करते हैं और फिर वंस अगेन फ्लाई ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रुक अपनी एक्सपीरियंस, अपनी इंटेलिजेंस को बयां करती है कि वो किस तरह उनके पंजों के बीच में से स्लिप करती है, स्लाइड करती है, राइट, और आगे अपनी जर्नी जारी रखती है। और उसके बाद और एक एक्सपीरियंस बयां करती है कि वो किस तरह उन सन रेज को डांस करवाती है, यानी नचवाती है, जो कि ट्रीज़ के बीच में से पानी के सरफेस पे आ जाती है। तो यहाँ पे शायर ने गहरी इमेजरी का इस्तेमाल किया है। Therefore we have to be very much careful to understand this imagery, but I'll be talking about this or these images inshallah in next video. Dear students, in the 12th stanza of the poem, the brook says, I murmur under the moon and stars in brambly wildernesses. I linger by my shingly bars. I loiter round my crevices. The students, in this stanza, the brook says that she continues her journey in the night under the moonlight and stars, in wildernesses where only wild bushes grow, and she stops there where rocks encounter her, where pebbles encounter her, and then she once again carries on by small plants. Dear students, in the last and the final stanza, the brook says, and out again I curve and flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. And in this stanza, once again, the brook curves, moves, takes a turn, and then flows in order to join the brimming river, her destination. And then she once again reminds us humans that you are mortal, you come and you go, but she continues to flow, and she will continue to flow forever. Dear students, permanence of nature and transience of human life is the main theme of the poem. The poet, through the poem, the book, has succeeded in communicating his idea, and he has succeeded in making us understand that human life on earth is mortal, short-lived, and transient. Therefore, the poet actually wants to tell us that whatever time we spend on earth, we should spend that remembering God, doing good deeds. And at the same time, the poet has succeeded in communicating that the brook, which represents the nature, is immortal, permanent, and lives forever. Dear students, the brook is written in the form of a ballad. A ballad is actually a poetic genre that narrates a tale in verse. It has 13 stanzas,
और हर कोई स्टंजा जो है इसमें 4 लाइन्स है। और जब भी हमें 4 लाइन्स का स्टंजा होता है पोइट्री में तो उसको हम क्वाट्रेन कहते हैं। यानी क्वाट्रेन इज एक्चुअली अ स्टंजा ऑफ 4 लाइन्स। और इस पोएम में एक फ्रेज को रिपीट किया गया है एंड दैट इज मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। और जब भी किसी स्टंजा के बाद में कोई फ्रेज या कोई लाइन रिपीट होती है तो उसको हम रेफ्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ्रेन। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम जिसका नाम है ब्रुक की राइम स्कीम जो है वो है ए बी ए बी। नाउ एक्सरसाइज फॉर यू। Who is the speaker of the poem The Brook, written by Alfred Tennyson? Number 2. Which phrase couplet is repeated in the poem? Number 3. Pick out 2 examples of personification from the poem. Number 4. Do you agree with the brook when she says, men may come and men may go, but I go on forever? If yes, explain. If no, explain. Thank you for watching this video.